So in this class, we are going to discuss integration by parts. So first of all, let us write the topic name. We are going to cover, or you can say we are going to start today, integration by parts. Integration by parts. Integration by parts में एक formula है, which you all are knowing. Still, there are a lot of things to learn from this topic. सबसे पहला चीज, we will be solving problems on direct formula of integration by parts. Integration by parts. Next, we are going to learn method of indefinite coefficients. Method of indefinite coefficients. Okay. Next, we are going to do integration using complex numbers. Integration using complex numbers. Integration using complex numbers. And fourth one, multiple integration by parts formula. Multiple integration by parts. Multiple integration by parts, or you can say generalized formula. Generalized formula of integration by parts. In case I don't teach you point number 2, 3 and 4, then also you will be able to solve each and every problem. But point number 2, 3 and 4 पढ़ लेने से बहुत variety of questions बहुत कम time में solve हो जाते हैं. So first of all, we should see the formula. So formula goes like this. Integration of uv dx, where we consider u as the first function and v as the second function. Generally, this is considered to be first function and v is considered to be second function. So we use the formula u times integral of v dx minus integral of first function का derivative into integral of v dx और पूरे का integration. Now proving this formula is beyond our scope, need not to be done. However, I will again say हर चीज proof के साथ आता है, but इसका कहीं कोई significance नहीं है दूर दूर तक हमारे जेई सिलेबस में, तो हम लोग को प्रूफ करने का कुछ भी जरूरत इसमें नहीं है. Now the most important thing is that ये जो फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन हम लोग चुने हैं, that is generally, I will say generally, हमेशा नहीं, that is generally done using the Eilert rule. Eilert rule tells that preference has to be given to inverse circular function or ITF, inverse trigonometric function. Next preference goes to log function, then comes algebraic functions. Algebraic function के बाद preference goes to trigonometric functions, and the last preference is given to exponential functions. Exponential को हम generally last में ही रखते हैं. So generally in 99% cases this preference order is followed, but कभी-कभी Eilert rule violate भी होता है. I will try to show you some examples जिसमें Eilert rule follow करोगे तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फॉलो नहीं करोगे
तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व होगा। सो दो तीन प्रॉब्लम जिसमें हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं कैसे लगाना है, उसके बाद हम लोग अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे, एंड ऑब्वियसली आई विल गिव यू टाइम, देन यू विल सॉल्व एंड समथिंग लाइक दैट। So first example we have, suppose we have to integrate tan inverse x. Now sometimes what we have to do is that कभी कभी हमको सेकंड फंक्शन या फर्स्ट फंक्शन दिखता नहीं है, तो हम लोग को फंक्शन मान लेना होता है 1। सो I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 into tan inverse x dx. Now tan inverse x is an inverse function, so this is always given preference. So this is first function, and this one is algebraic expression that will come under the second function. So implies I equal to first function matlab tan inverse x into integration of second function minus integration of first function का differentiation जो कि 1 by 1 plus x square होगा into integration of second function और फिर पूरे function का integration with respect to x, and finally you will get constant of integration. So this is quite easy to be done. I equal to 1 का हो जाएगा x, so this is x tan inverse x minus integral of this will be x by 1 plus x square dx plus c, यहाँ हाफ लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। सो दिस इज बेसिकली नीचे अगर तुम t लो तो ऊपर तुम्हारा dt है, तो dt by t is ln t. सो इंटीग्रल ऑफ tan inverse x dx, you have got the answer as x tan inverse x minus half ln मॉड में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे केसेस में तुम मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि तुम जानते हो 1 plus x square is always positive, so you can directly write half ln of 1 plus x square. There is no harm in writing that. So our next problem, similarly you can do sin inverse x, उसमें भी second function तुम 1 को मान सकते हो। So now suppose we have the example, evaluate इंटीग्रल ऑफ, बेसिक एग्जांपल से हम लोग आगे बढ़ेंगे, x cube log x base e dx, or you can say ln x. So solution, we have it here. What we are going to do, our integral given is x cube into ln x dx. Now as per the Euler rule, this is logarithmic function and this is algebraic function. So this is our first function and this is our second function. First मतलब u हो गया, फर्स्ट का मतलब हो गया मेरा u फंक्शन, दिस इज u फंक्शन, और सेकंड का मतलब दिस इज v फंक्शन. सो implies I equal to u into integral of v dx minus integral of derivative of u will be 1 by x into integral of v dx और फिर पूरे का with respect to x plus c. So quite easy one. Implies I equal to this is x power 4 by 4 into ln x minus integral of अगेन 1 by 4 बाहर आ जाएगा और x पावर 4 x से कट के x क्यूब हो जाएगा और dx plus c. So our answer is x power 4 by 4 into ln x minus ये फिर से x पावर 4 by 4 हो जाएगा. So x power 4 by 16 plus c. So if it is going everything very clear, just raise your hands. Okay, fine. Now I will take a little different example. थोड़ा सा अलग टाइप का एग्जांपल लेते हैं, बेसिक ही एग्जांपल है. I will not take difficult one. कोई भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय कोई भी टफ एग्जांपल्स नहीं लेंगे. Suppose we have to integrate x cos x dx. Now
दिस इज, ये हम पिछले बार के ही जैसा ले लिए हैं, कुछ भी अलग हट के नहीं लिए हैं। इसके बाद वाले में थोड़ा देखेंगे अलग हट के, अगर लिया जा सके तो लेंगे हम लोग। सो व्हाट इज दिस, आई गिवन इज इंटीग्रल ऑफ x into cos x dx। नाउ आई लेट रूल के हिसाब से दिस इज एन algebraic function, however this is an trigonometric function, so this must be our second function and this must be our first function। फर्स्ट फंक्शन मतलब ये u होगा और ये हमारा v होगा। so this goes like this, first function into integration of second function minus integral of, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और फिर पूरे का dx plus c। so implies I equal to cos x का इंटीग्रेशन sin x, so x sin x माइनस इंटीग्रल ऑफ cos x का इंटीग्रेशन sin x, जिसको हम लोग को एक बार इंटीग्रेट और करना होगा और वो माइनस cos x होता है, तो माइनस माइनस प्लस cos x हो जाएगा। प्लीज रेज हैंड इफ क्लियर। डायरेक्ट फॉर्मूला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस फॉर्मूला में। सो सपोज वी हैव अनदर प्रॉब्लम, another problem says suppose evaluate integral of x square sin x। I will check, suppose it is given integrate x square sin x, yes correct, x square sin x। सिंपल ही है, फिर भी क्वेश्चन के ऑथेंटिसिटी के लिए चेक करते रहना पड़ता है। so our solution is that, एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, देखो जीरो लेवल से स्टार्ट किए हम लोग और कहाँ पहुंचेंगे हमको भी नहीं पता। सो नाउ हमारे पास आई है इंटीग्रल एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स। नाउ अगेन algebraic function is first function and trigonometric function is second function। मतलब कि तुम्हारा algebraic function जो है वो u हो गया और trigonometric function तुम्हारा v हो गया। so implies I equal to x square into integral sin x dx माइनस इंटीग्रल एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटीग्रल sin x dx और फिर पूरे का इंटीग्रेशन प्लस सम c। सो इम्प्लाइज I इक्वल टू sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का होता है तुम्हारा sin x का माइनस cos x, सो माइनस एक्स स्क्वायर cos x, तो माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रल x इंटू फिर sin x का माइनस cos x होगा तो ये प्लस हो जाएगा और x cos x dx plus c। what we have done just previously, cos x को यहाँ जस्ट किए हम लोग, देखो x cos x we have done। so यहाँ के बाद हम लोग को फर्दर बाय पार्ट्स लगाना है इसमें। so this one x cos x integral can be done method of by parts, by method of by parts once more। और फिर तुम इसमें क्या करोगे, तुम इसको I1 मानोगे, मतलब तुम्हारा जो अभी इंटीग्रल निकालना है वो हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स I1 प्लस सी, वेयर I1 तुम्हारा हो गया इंटीग्रल ऑफ एक्स कॉस एक्स dx। सो आवर आंसर विल बी व्हाट, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स I1 अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में निकाले हैं, एग्जाम में तुमको निकाला हुआ नहीं रहेगा, एग्जाम में तुमको 2 बार बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट रेज हैंड, एग्जाम में 2 बार बाई पार्ट्स लगाना होगा। तो x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x, x sin x प्लस cos x प्लस c। so our answer is minus x square cos x plus 2x sin x plus 2 cos x
plus c which can be simplified to cos x के साथ क्या आ रहा है 2 minus x square into cos x plus 2x sin x. करेक्ट? प्लीज रेज हैंड. ओके, cos x के साथ आ गया 2 minus x square cos x. So now दो बार लगाना पड़ा हमको बाई पार्ट्स. We will take another example. एक और एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है ये. आई विल गिव यू 2 minutes ओनली. तुम सपोज करो जेई मेंस में तुम्हारे पास ये क्वेश्चन आया है और तुमको 2 मिनट में आंसर मार्क करना. ये लास्ट प्रॉब्लम है तुम्हारा पेपर का जो तुमको दिखा और तुम्हारे पास सिर्फ 2 से 2.5 मिनट बचे हैं, लेकिन तुमको लगता है कि तुम ये बना दोगे किसी तरह और तुमको ये फटाफट बनाना है एग्जाम में ताकि तुम्हारे और 4 मार्क्स आ जाए और 4 मार्क्स का मतलब और 2-2.5 हजार रैंक ऊपर हो जाए. सपोज वी हैव क्वेश्चन इवैल्यूएट इंटीग्रल x square minus 2x plus 5 whole into e power minus x dx. So just send me the answer in my WhatsApp text. Your time starts now. I think you have tried sufficient. जितना try करना था तुम किए. Now I will proceed. Now see my solution and just confirm you have done the same way or not. If same way, तो तुम chat box में लिख देना same way sir. So now I दिया हुआ है integration of x square minus 2x plus 5 into e power minus x dx. Now the second function is exponential function, so this has to be taken as second function Eilert rule के हिसाब से, और ये algebraic function है. So this is our first function. तो पहला function हो गया मेरा u और दूसरा function हो गया मेरा v. Please raise hand who have taken this. Step by step पूछते जाएंगे. So I equal to x square minus 2x plus b into integration of e power minus x dx minus integral पहले का differentiation is 2x minus 2 into of e power minus x dx और फिर पूरे का dx plus c. This is the formula for integration by parts. Now implies this can be written as e equal to x square minus 2x plus 5 और e power minus x का इंटीग्रेशन हो जाएगा e power minus x और by minus 1 मतलब बाहर एक माइनस आ जाएगा. तो वैसे ही ये वाला माइनस भी पक्का प्लस हो जाएगा और 2 भी बाहर निकल जाएगा और अंदर आ जाएगा minus 1 into e to the power minus x dx. Please raise hand if I am correct. So now again please raise hand if I am correct. 2 हम बाहर निकाल लिए, e पावर माइनस x होता तुम्हारा e पावर माइनस x माइनस वो बाहर प्लस कर दिए. Now this is again another integration I1. So our answer I can be written as minus e power minus x into x square minus 2x plus 5 plus 2 times I1 plus c, where we have taken I1 as integral of x minus 1 into e power minus x dx. So everything depends on finding I1. So now I1 है मेरा integral of x minus 1 into e power minus x dx. I will again say exponential function हमेशा second होता है. This is u and this is v, so we can write x minus 1 into integration of e power minus x dx minus integration of u का differentiation 1 होगा और integration of e power minus x dx और फिर पूरे का dx. So this is how much? This is equal to x minus 1 into e power minus x और by minus 1 तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा अंदर में e पावर माइनस x और माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा e पावर माइनस x dx. And this is finally minus e power minus x into x minus 1 और ये भी हो जाएगा minus e power minus x. So this is our I1. So our I will be implies I equal to minus e power minus x into x square minus 2x plus 5
प्लस 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स e पावर माइनस x इंटू x माइनस 1 minus 2 times e power minus x plus c, and when simplified we get I equal to माइनस ई पावर माइनस एक्स हम बाहर ले लेते हैं तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, माइनस कॉमन ले लिए हैं याद रखना, तो प्लस 2x माइनस 2, और यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिए हैं, सो प्लस 2 प्लस सी, और इधर क्या हो रहा है तुम्हारा 2x कट गया, 2 कट गया, तो फाइनली माइनस ई पावर माइनस एक्स होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। गॉट? रेज हैंड जिसका जिसका यही मेथड है, एकदम सेम and same answer. Just send me text message, same method sir, and correct answer. So just tell me if it is good, if you got it correct, just text me. I need to see कितनों का सही आया. So now the method was too long. Okay, the method was too long. जेई मेंस में तुमको हर क्वेश्चन को करने के लिए 1.5 से पौने 2 मिनट मिलता है, 2 मिनट नहीं मिलता है. So here comes the need for some short method. Now see, so we are going to discuss something new here. Pay full attention. We are going to discuss method of indefinite coefficients. Method of, हम बोले थे ना कि जो भी क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर सकते हो उसी को सॉल्व करने का शॉर्ट तरीका है पॉइंट नंबर 2, 3, 4. So here we are at point number 2, method of indefinite coefficients. Now please observe that क्वेश्चन था तुम्हारा, we can observe that integration of x square minus 2x plus 5 into e power minus x जब तुम किए तो आंसर में आया minus of x square plus 5 into e power minus x plus c, or better you can write like this, minus x square minus 5 into e power minus x plus c. So this is very clear observation. This is some polynomial px of 2 degree, यहाँ पे 2 लिखते हैं, of 2 degree, and this is also some another polynomial of 2 degree. ये 2 लिखने का मतलब है डिग्री लिख रहे हैं वहाँ. So what we can conclude is that conclusion, an excellent conclusion is this one: integral of pnx e power ax dx is always of the form qnx into e power ax plus c, where pnx and qnx are polynomials of degree n. जितना polynomial डिग्री अंदर रहेगा उतना ही डिग्री बाहर निकल के आएगा. are polynomials of degree n, same डिग्री होता है हमेशा. So now we will use this one. This is method of indefinite coefficients. This is method of indefinite, rarely तुम जानते हो ये सब, rarely कोई बच्चा ये सब जानता है. This is method of indefinite coefficients. Generally बच्चे ये सब चीज नहीं देख पाते हैं अपने प्रिपरेशन के दौरान, but we have to see everything. So now application. Our question was integration of x square minus 2x plus 5 e power minus x dx. Let me check, is it correct or not? X square minus 2x plus 5. So this is a polynomial of degree 2. This is a polynomial of degree 2. So answer has to be some 2 degree polynomial only. Answer has to be some 2 degree polynomial. So let us take it as ax square plus bx plus c into e power minus x ही आएगा, यही आएगा तुम्हारा सेम डिग्री. नाउ we just want to find a, b and c. Now differentiate both sides. Differentiating क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना ही नहीं है. Differentiating
both sides. अच्छे से सीखना, अगला एग्जांपल तुम्हारा आंसर आना चाहिए, अभी से फास्ट आना चाहिए. So what we are going to get, इधर तो यही हो जाएगा x square minus 2x plus 5 into e power minus x. Now this side differentiate very carefully. तो तुम्हारा ax square plus bx plus c into e power minus x को डिफरेंशिएट करोगे तो e पावर माइनस x और एक बाहर माइनस आएगा, और फिर प्लस e पावर माइनस x के साथ जब करोगे तो 2ax plus b आएगा. Now just compare the coefficients on left side and right side. E power minus x is a common factor. You can cancel it out. You can cancel it out. And now compare the coefficients of x square. x square left में 1 है और right में इधर से देखो minus a आ रहा है और इधर से कुछ भी नहीं आ रहा है. So from here you see a equal to minus 1. So this is our first condition. Now compare the coefficients of x. इधर minus 2 है, इधर कोफिशिएंट है माइनस b और इधर कोफिशिएंट है प्लस 2a, and put a equal to minus 1. What you are getting b as 0. Please raise hand if you are getting it clearly, very clearly. And just compare the constant term. You are going to get 5. इधर आएगा माइनस c और इधर आएगा प्लस b और b तो 0 था तो c हो गया माइनस 5 and you have the answer. So answer, put a b and c. तो तुम्हारा a कितना आएगा, a आ गया -1. just put here a -1. this a is -1, this b is 0 and this c is -5. so minus common निकाल लो. so x square plus 5 into e power minus x plus c. so this is the answer. So if it is very much clear, just raise hand. And how is the method? Is it time saving or not? Just send me a text message. Did you like the method? इंटीग्रेशन नहीं करना है, दो बार बाई पार्ट्स छोड़ो, एक बार भी बाई पार्ट्स नहीं लगाना है, and you will get direct answer. So I am giving you a next problem. Apply the same method of indefinite coefficients to the problem and get me answer in less than 1 minute. This time you have a time bound of less than 1 minute. किसी भी तरह तेजी से 1 मिनट से कम में आंसर दो. उस समय तुमको हम 2 से 2.5 मिनट दिए, लेकिन अब तुम्हारे पास एक बहुत जबरदस्त मेथड है. So here comes the question for you. Ready? Raise hand. Ready? 1 मिनट से कम में करोगे, 1 मिनट. इंटीग्रेट 3x क्यूब. पता है ये सब क्वेश्चन में अगर तुम नॉर्मल बाय पार्ट्स लगा के देखना कितना गजब कैलकुलेशन होगा और गलत होने का चांस भी बहुत रहता है. e power 2x dx. स्टार्ट. यू कैन स्टार्ट. जस्ट स्टार्ट एंड गिव योर बेस्ट. तुम काफी देर इसको कोशिश किए, इसको बाय पार्ट से तो कोशिश करना भी मत. बाय पार्ट से इट विल टेक 3 टाइम्स बाय पार्ट्स. So I will not do using by parts. I will do using method of indefinite coefficients. So what I will write is that since let अंदर में जो मेरा पोलिनोमियल है, दिस पोलिनोमियल इज a 3 degree polynomial. So integral 3x cube minus 17 into e power 2x dx. Let me check. क्वेश्चन वा सही दिए है ना? 3x क्यूब वाला दिए हैं, कुछ और दे दिए हैं. 3x cube minus 17 करेक्ट ओनली. रेयरली गलत देते हैं लेकिन गलत दे भी सकते हैं. So now, since it's a 3 degree polynomial, on the right hand side we take ax cube plus bx square plus cx plus d whole into e power 2x plus some constant को हम लोग k से डिनोट कर लेते हैं. Please raise hand जो ये लिया है. So implies now differentiating both sides I will get this side 3x minus 17 whole into e power 2x and right side में हम लोग लेंगे ax cube. कैमरा बंद रखा करो सब लोग अपना. bx square plus cx plus d into e power 2x का हो जाएगा e power 2x और इधर 2 आ जाएगा और प्लस e पावर 2x के साथ में आएगा अंदर में
3a x square plus 2bx plus c. Now, when I compare the coefficients on both the sides, e power 2x can be cancelled out directly. And first of all, we compare the coefficients of cube. So 2a is 3. So from here, a equal to 3 by 2. First equation. Hand raise करो किसका आया. Also, we write all the equation. x square का coefficient तुम्हारा आ जाएगा 2b और क्या आएगा एक्स स्क्वायर. देखो यहाँ से आ रहा है एक्स स्क्वायर और इधर से आएगा तुम्हारा 3a एंड दिस इज गोइंग टू बी 0. सो 2b इक्वल टू -9/2 क्योंकि a 3/2 है. सो b विल बी -9/4. इक्वेशन 2. नाउ x का कोफिशिएंट देखते हैं हम लोग तो इधर से 2c आ रहा है और इधर से x का कोफिशिएंट 2b आ रहा है विच इज ऑल्सो 0. So c is equal to -b. तो c का वैल्यू होना चाहिए 9/4. इक्वेशन 3. एंड नाउ द लास्ट कांस्टेंट टर्म हम लोग कंपेयर करेंगे तो इधर से आएगा मेरा 2d और इधर से कांस्टेंट टर्म मेरा क्या है c प्लस c और इधर से कांस्टेंट टर्म है मेरा -17. तो 2d इक्वल टू -17 -9/4. So this is -77/4 and d is -77/8. So all the four coefficients known, so we can directly write the answer. So our answer for the problem is integral 3x cube minus 17 into e power 2x dx will be a का वैल्यू कितना है 3/2 x cube minus 9/4 x square plus 9/4 x minus 77/8 whole into e power 2x plus c. Answer. Please raise hand किसका किसका ये आंसर है. Just raise hand. So please rate the method out of 5. आउट ऑफ 5 स्टार इस मेथड को कितना स्टार मिलना चाहिए. अगर 3 बार बाय पार्ट्स लगाने को ये क्वेश्चन सिर्फ 4 छोटे छोटे इक्वेशन को सॉल्व करने पर रिड्यूस कर दे और वो इक्वेशंस एक इक्वेशन ये है जो क्लास 7 का बच्चा सॉल्व कर देगा, ये क्लास 7 का बच्चा सॉल्व कर देगा, ये क्लास 7 का बच्चा सॉल्व कर देगा, ये क्लास 7 का बच्चा सॉल्व कर देगा, तो ये सब क्लास 7 का बच्चा कर देगा. अगर 7 का बच्चा को याद करवा देना हम लोग कि ये वाला अप्रोच होता है तो 7 का बच्चा ये आंसर ला देगा. यस और नो 7 का बच्चा ला सकता है कि नहीं अगर ये अप्रोच दे दें तो जस्ट टेल मी. 7 का बच्चा ये ला सकता है आराम से. अगर 7 के बच्चे को हम सिखा दें कि भाई ऐसे ऐसे लिखना है और ऐसे ऐसे कोफिशिएंट कंपेयर कर डालो तो 7 का बच्चा को हम एक बार इंटीग्रेशन सिखा दिए थे. ये वाला स्पेशल केस हमको याद है इसलिए तुम लोग को बता दिए. 7 का बच्चा भी ये अगर रटवा दें कि भाई ऐसे करने से ऐसे होता है, यहाँ 3 डिग्री है तो यहाँ भी 3 डिग्री ले लो और धीरे धीरे उसको कैलकुलेशन सिखा दिए थे हम, वो आंसर निकाल दिया था. सो वी विल गो फॉर अनदर प्रॉब्लम. तो ये था मेथड ऑफ इनडेफिनिट कोफिशिएंट्स. सो नाउ वी कैन हैव अनदर प्रॉब्लम. से अनदर प्रॉब्लम इज, इसके लिए भी हम तुमको टाइम देंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली आई विल सॉल्व इट. सो और चलो तुमको दिए टाइम, जाओ इंटीग्रेट x cube plus 1 into cos x dx. First of all, let me confirm whether the problem is correct or has some error. X cube plus 1 whole into cos x dx. Yes, please try. I am giving you 2 minutes from now. काफी समय ले चुके हो तुम लोग. Okay, तो I will solve it. Just match तुम लोग किए हो कि नहीं ऐसे. Then we will proceed to our next topic. So solution. हम लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे. ऐसे क्वेश्चंस में अगर पेशेंस नहीं रखे ना तो क्वेश्चन एक बार में ही साफ हो जाएगा गलत. तो I equal to, now which function is the first one? This one is the u function, first function, and this is trigonometric function. पहला वाला algebraic function था. So this is x cube plus 1. पेशेंस रखेंगे हम लोग, हम बार बार बोल रहे हैं. cos x dx ऑलरेडी तुम पेशेंस के साथ बना चुके हो तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू इंटीग्रल
cos x dx और dx plus c, so implies I equal to x cube plus 1 cos x का sin x हो जाएगा -3 बाहर x square cos x का sin x हो जाएगा. Now you must remember x square sin x ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसको करने के लिए भी हम लोग को 2 बार लगाना पड़ा था बाई पार्ट्स. सो आई विल डू इट हेयर. ये अगर हम I1 माने तो फिर I हो जाएगा, और चूंकि तुम अगर नोट्स बना रहे थे साथ ही साथ तो तुमको ये नोट्स में ही दिख जाएगा कि ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. वेयर I1 इक्वल टू, बट आई विल सॉल्व कंप्लीटली हेयर ताकि तुमको फील हो कि क्वेश्चन कितना लंबा था. सो नाउ एक्स स्क्वायर साइन एक्स में हम लोग u किसको मानेंगे? ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर को u मानेंगे. दिस वन इज algebraic फंक्शन, दिस वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सो दिस इज एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx. सॉरी, अगर हम उस समय इंटीग्रेशन बोल दिए 2x के समय तो वो डिफरेंशिएशन होगा. सो इम्प्लाइज I1 इक्वल टू, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और ये भी माइनस निकल जाएगा और 2 के साथ x cos x dx. So I1 what we have is minus x square cos x plus 2 times I2, where हम लोग I2 लिए हैं इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx को. नाउ इसमें भी हम लोग x को u मानेंगे और cos को v मानेंगे. सो वी हैव नाउ I2 equal to x integration of cos x dx minus integration of cos x dx पूरे का dx. So this is x sin x और अंदर आ जाएगा माइनस में इंटीग्रल ऑफ sin x dx और sin x का माइनस cos x. So this is x sin x plus cos x. तो I2 आ गया, I2 से हमारा I1 निकल जाएगा. I1 लिखेंगे, इम्प्लाइज I1 इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स I2, मतलब प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स. अब I1 से हमारा I निकल जाएगा, कैसे? सो I इक्वल टू क्या था? I था मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू साइन एक्स, एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 3I1 तो माइनस 3 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स प्लस c. सो फाइनली I इक्वल टू साइन एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है और कॉस एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है. साइन एक्स के साथ आ रहा है, यहाँ से देखो एक्स क्यूब प्लस 1, और क्या आ रहा है साइन एक्स के साथ? माइनस 6x आ रहा है साइन एक्स के साथ. और cos x के साथ क्या आ रहा है? देखो यहाँ से 3x स्क्वायर आ रहा है cos x के साथ, पहले वाले से तो सब sin x ही था, और क्या आ रहा है यहाँ से तुम्हारा 3x स्क्वायर आ रहा है और माइनस 6 आ रहा है cos x प्लस c. ये जिसका जिसका आंसर है प्लीज हैंड रेज करो. ओके, काफी लोगों का ये आंसर है. आई विल चेक आंसर इज करेक्ट और नॉट. एक्स क्यूब माइनस 6x प्लस 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 6, यस करेक्ट आंसर. तो जिसका जिसका भी आंसर सही है, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड एट द सेम टाइम आई एम वेरी सैड फॉर यू. देखो लेंथ सॉल्यूशन का. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 lines. So that's really big, but it could have been done in 3 to 4 lines. We can apply method of indefinite coefficient here also. So method of indefinite coefficients
can be applied to integrals of form integration of Pnx into sine of some ax dx and integration of Pnx into cos of ax dx. सेम है, बस कैसे लगेगा, डिग्री सेम रहेगा हमेशा. सो क्या करते हैं हम लोग ऐसे केस में, वी राइट इंटीग्रल ऑफ पी एन एक्स के साथ अगर साइन ए एक्स होता है ना, तो तुम ऑब्जर्व करो पी एन का डिग्री देखो कितना है. पहले में जो क्वेश्चन था, मेरा क्वेश्चन था एक्स क्यूब प्लस 1 के साथ कॉस एक्स, तो पोलिनोमियल का डिग्री 3 था. ये देखो डिग्री 3, और ये भी डिग्री 3 ही है, बस लीडिंग कोएफिशिएंट 0 हो गया है. और साइन एक्स वाला टर्म भी आएगा और कॉस एक्स वाला भी आएगा, दोनों आता है. तो इसमें हम लिख सकते हैं इसको सम क्यू एन एक्स इंटू साइन ए एक्स प्लस सम आर एन एक्स इंटू कॉस ए एक्स प्लस सी. दैट्स इट, सेम डिग्री. वेयर पी एन एक्स, क्यू एन एक्स, आर एन एक्स हैव डिग्री n. तुमको अगर रियलाइज हो रहा है कि हाँ इससे कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो जाएगा, तो तुम हैंड रेस कर सकते हो. बहुत जबरदस्त कैलकुलेशन सिंपल होता है इससे. एंड सिमिलरली यू कैन टेक पी एन एक्स इंटू कॉस ए एक्स डी एक्स को भी तुम लिख सकते हो. दूसरा पोलिनोमियल सेम डिग्री का इंटू कॉस ए एक्स, और साइन वाला भी रहेगा. दोनों में सेम ही चीज होता है, दोनों का आंसर का फॉर्मेट सेम होता है. This is our theory for this type of question. So we will apply this theory and we will try to solve the previous problem. Let us check the answer matches or not. So now let integral x cube plus 1 के साथ cos x था, तो 3 डिग्री है, तो हम 3 डिग्री ही अज्यूम करेंगे. 3 डिग्री अज्यूम करेंगे. सो लेट इट बी a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a वन, सॉरी 3 डिग्री है ना, पेज थोड़ा चौड़ा चाहिए. ए नॉट एक्स क्यूब हड़बड़ाएंगे नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा. ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री, इसके साथ मान लो कॉस एक्स ही है, और प्लस एक और पोलिनोमियल 3 डिग्री का, तो बी नॉट एक्स क्यूब प्लस बी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस बी थ्री के साथ में हो जाएगा साइन एक्स. इफ क्लियर प्लीज रेज हैंड. अप्रोच क्लियर. नाउ वी डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, और वो अच्छा से करेंगे, नहीं तो गड़बड़ा सकता है मामला. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, इधर आ जाएगा मेरा एक्स क्यूब प्लस 1 के साथ में कॉस एक्स. दिस शुड बी इक्वल टू ए नॉट एक्स क्यूब प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स प्लस ए थ्री, और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और प्लस कॉस एक्स के साथ हो जाएगा 3a नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2a1 एक्स प्लस a2. सिमिलरली प्लस b नॉट एक्स क्यूब प्लस, देखो ये सब करने में कॉन्फिडेंस बहुत रहता है, भले वेरिएबल ज़्यादा है लेकिन कॉन्फिडेंस इतना है कि तुम गलती नहीं करोगे. और इंटीग्रेशन में देखो थोड़ा ढीला हुआ रहता है कॉन्फिडेंस. तो साइन एक्स इंटू 3b नॉट एक्स स्क्वायर प्लस 2b1 एक्स प्लस b2. देख के डरावना है, आई एग्री, बट सॉल्व करने में बहुत सिंपल. तो जो भी साइन के साथ आएगा ना, सब जीरो.
implies x क्यूब प्लस 1 इंटू कॉस एक्स। इसको पहले तो तुम साइन एक्स के साथ क्या क्या आ रहा है वो लिख लो। साइन एक्स के साथ देखो तुम्हारा ए नॉट एक्स क्यूब आ रहा है, वो माइनस में रहेगा, माइनस ए नॉट एक्स क्यूब, क्योंकि साइन वाला टर्म दो जगह है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो एक्स क्यूब इधर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर दोनों जगह से आ रहा है मेरे ख्याल से। इधर से माइनस, प्लीज रेज हैंड इफ कॉन्फिडेंट, माइनस कॉमन ले, माइनस a1, और यहाँ से क्या आ रहा है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, इधर से आ रहा है तुम्हारा 3b0, 3b0, और इधर से माइनस a1 एक्स स्क्वायर प्लस x कितना आएगा इधर से तो x हमको दिख रहा है 2b1, इधर से x कितना दिख रहा है तुमको माइनस a2, और कांस्टेंट कितना दिख रहा है साइन के साथ b2, और इधर कांस्टेंट कितना दिख रहा है a3। ये मेरा सब साइन x के साथ हो गया। उसी तरह cos x के साथ क्या क्या आएगा, आराम से लिखेंगे। cos x के साथ मेरा क्या क्या आ रहा है, cos x दो दो जगह पड़ा हुआ है, तुम देख सकते हो, बोर्ड फंस रहा है इसलिए स्लो हो रहा है। ओके, cos x के साथ देखो तुम्हारा दो जगह cos x है, आई विल राइट विद द रेड पेन, हियर वी हैव cos x, हियर वी हैव cos x। तो हाईएस्ट डिग्री तुम्हारा दूसरे वाले से आ रहा है b0 x क्यूब, और एक्स स्क्वायर कहाँ आ रहा है, इधर से b1 एक्स स्क्वायर आ रहा है, और उधर से 3a0 एक्स स्क्वायर आ रहा है। x वाला कितना आ रहा है, इधर से b2 x आ रहा है, और इधर से कितना x आ रहा है 2a1 x आ रहा है। इधर से कांस्टेंट कितना आ रहा है b2 आ रहा है, इधर से कांस्टेंट कितना आ रहा है a2 आ रहा है। ये cos के साथ आ गया। सो नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू कंपेयर द कोफिशिएंट्स, एक आएगा उससे दूसरा आएगा, उसी से सब आता जाएगा। सो इम्प्लाइज साइन वाला जितना कोफिशिएंट है वो सब जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन का टर्म लेफ्ट साइड में है ही नहीं, तो माइनस ए नॉट इक्वल टू जीरो, इसके बाद 3b0 माइनस a1 इक्वल टू जीरो, उसके बाद 2b1 माइनस a2 इक्वल टू जीरो, और b2 माइनस a3 इक्वल टू जीरो। अब कॉस वाला कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे हम लोग, तो b0 एक्स क्यूब है ना, तो b0 हो जाएगा 1, और b1 प्लस 3a0, ये एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 0, और b2 प्लस 2a1, ये x है तो ये भी 0, और लास्ट कोफिशिएंट क्या है b2 प्लस a2, b2 प्लस a2, ये कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, cos के साथ मेरा x क्यूब प्लस 1 था, तो ये 1 हो जाएगा। Now what are the things which we have found directly? So this is b0 equal to 1, यहाँ से हम लोग का a0 इक्वल टू 0, डेटा लिखते जाएंगे हम लोग एक एक करके। 6 वेरिएबल है हमारे पास, जिसमें से a0 0 और b0 1। अब चाहिए a1, इधर चाहिए b1, इधर चाहिए a2, इधर चाहिए b2, लास्ट में चाहिए a3, और इधर चाहिए b3। a1 कहाँ से निकल जाएगा, सी दिस वन, b0 1 है, b0 1 डालोगे तो a1 3 आएगा, हैंड रेस करो। अब a1 इसमें डाल दो, a1 कितना आया, a1 3 डालोगे तो b2 माइनस 6 आ जाएगा। अब b2 इसमें डालो, b2 जब माइनस 6 आएगा तो फिर a3 तो b2 के बराबर ही है, तो ये भी माइनस 6 आएगा। और क्या क्या आ गया, अब चाहिए हमको b1 चाहिए, तो वो देखो यहाँ से आ जाएगा। अब तुम्हारा 3 वेरिएबल आ गया, अब a0 0 है तो वो a0 यहाँ 0 रख दो, तो b1 0 आ जाएगा, b1 यहाँ 0 रख दो तो a2 0 आ जाएगा, और a2 यहाँ 0 रख दो तो b2 1 आ जाएगा। प्लीज रेज हैंड इफ ऑल वेरिएबल्स क्लियर। चेक कर लो तुम, सब एक दूसरे से ही आ रहा है। सो वी कैन राइट द आंसर।
So our answer is integral of x cube plus 1 cos x dx is equal to, क्या हम लोग लिए थे, याद होगा तुमको आंसर, देख लो। cos के साथ जो है वो a नॉट वाला, a वाला है cos के साथ और b वाला है sin के साथ। ओके, तो cos के साथ वाला पहले लिखते हैं। तो cos के साथ मतलब a नॉट वाला, तो a नॉट तो 0 हो गया, उसके बाद a1 a नॉट एक्स क्यूब हो गया, हटाओ, फिर a1 एक्स स्क्वायर हो गया तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर a2x खत्म, a3 -6 ये cos x के साथ हो गया, प्लस b वाला सारा sin x के साथ है, तो b नॉट एक्स क्यूब, तो 1x क्यूब, फिर b1 ओके एक्स स्क्वायर गया, फिर b2 -6x और फिर प्लस b3 इंटू साइन एक्स प्लस c। Is this the same answer which you got earlier? x cube minus 6x plus 1 into sin x था, x cube minus 6x plus 1 sin x था या नहीं था? We will check. x cube minus 6x plus 1 sin x और 3x square minus 6 cos x के साथ वो था। So please raise hand if this method is clear. Now you must be thinking that इसमें काफी कैलकुलेशन हो गया। Yes, correct होना ही था। कितने वेरिएबल्स है देख रहे हो? 8 वेरिएबल्स है टोटल, बट 8 वेरिएबल में कोई भी निकालने में दिक्कत नहीं हुआ हम लोग को। सो पहले तो बोर्ड चेंज कर लें। ये मेथड हम इसलिए बताए ना तुमको, क्योंकि ये मेथड तुम वहां लगा दोगे जहां ज्यादा वेरिएबल का जरूरत नहीं पड़ेगा और तुम्हारा आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे कि देखो, एक सिंपल से एग्जांपल देते हैं तुमको, सिंपल एग्जांपल। सपोज एग्जांपल वी हैव, जैसे कि मान लो कभी जेई मेंस में या कहीं तुमको जरूरत पड़ गया एक्स स्क्वायर साइन एक्स, जो अभी जस्ट जरूरत पड़ा था, इसको तुम कैसे किए थे? इसको तुम एक बार बाई पार्ट्स लगाए थे, उसके बाद आ गया था किस पर, एक्स कॉस एक्स पर, और फिर एक्स कॉस एक्स पर लगाए थे। तो उससे अच्छा है तुम क्या करते हैं, 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है तो तुम 2 डिग्री का टर्म मान लोगे। यहाँ 2 डिग्री कैसे मानते हैं, ए नॉट एक्स स्क्वायर प्लस a1 एक्स प्लस a2 कॉस भी आएगा और साइन भी आएगा। Now what is my personal opinion, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मेथड ऑफ इनडेफिनिट कोफिशिएंट्स जब हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में लगाते हैं तो वहां हम लोग को लॉस होने लगता है टाइम का। तो नाउ यू हैव बोथ द मेथड्स, पता दोनों होना चाहिए, इसलिए ये मेथड से भी आंसर आएगा। दिस इज योर ड्यूटी टू डू, आई डिड नॉट डू, टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, जस्ट सेंड मी अ टेक्स्ट। ये मेथड क्लियर है, मेथड ऑफ इनडेफिनिट कोफिशिएंट्स दोनों में लग रहा है। सो दैट्स वेरी गुड, कर लोगे, आई होप ये तुम लोग कर लोगे, आई नो दैट। So now another type of question. Suppose now I am not giving you problem, I am teaching you just one thing, that method of multiple integration by parts, method of multiple integration by parts, or you can say it as generalized formula for integration by parts। ये फॉर्मूला क्या कहता है, पहले ये देख लेते हैं। ये कहता है कि इंटीग्रेशन ऑफ यू भी डी एक्स अगर है, इसको लिख सकते हो तुम, आराम से समझना, u इंटू वी वन माइनस यू डैश इंटू वी टू प्लस u डबल डैश इंटू वी थ्री माइनस u डैश वी फोर प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन।
वेयर ये जो v1 है ये v का इंटीग्रेशन है, जो v2 है वो v1 का इंटीग्रेशन है, जो v3 है वो v2 का इंटीग्रेशन है, लाइक दिस सक्सेसिव इंटीग्रेशन, सक्सेसिव। सो जनरली ये कहाँ काम आता है? कैन बी यूज्ड फॉर, कॉमन क्वेश्चन रहता है ये सब एग्जाम में, कैन बी यूज्ड फॉर इंटीग्रल्स ऑफ, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो ये जरूरी नहीं कि यहाँ पोलिनोमियल हो, कोई भी फंक्शन हो और उसके साथ में मान लो कोई फंक्शन है मेरा, वेयर बेटर वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ पोलिनोमियल ओनली, पोलिनोमियल में ही अप्लाई करना। पोलिनोमियल है n डिग्री का और जहां फाई एक्स को हम n+1 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, सॉरी इंटीग्रेट, फाई एक्स कैन बी इंटीग्रेटेड n+1 टाइम्स सक्सेसिवली। एक बार भी अगर इंटीग्रेशन फंसता है तो फिर ये मेथड नहीं लगा सकते हैं हम लोग। So we can understand this by an example. I will take an example. Suppose problem we have, I will take problem अभी बाई पार्ट्स में बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ चीज करना है हम लोग को, तो इट्स जस्ट बिगिनिंग। What questions can be taken? Yes, we can take problem like this. Suppose एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। Suppose it is given, evaluate integral say x cube minus 4x square plus 3x minus 2 whole into e power 2x dx। सो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं तुम्हारे साथ, इसको कैसे करना होता है। पोलिनोमियल इंटू ई पावर ax को तुम जान चुके हो कि आंसर जो भी आएगा वो भी 3 डिग्री इंटू ई पावर 2x ही होगा, तो तुम 3 डिग्री ले सकते हो, लेकिन उसमें कितने वेरिएबल आएगा, a0 a1 a2 a3, a0 x क्यूब a1 x स्क्वायर a2x a3, 4 वेरिएबल आएगा। डिफरेंशिएट दैट इज अ बेटर मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी बन सकता है। We can apply a method of multiple integration by parts also, उसमें तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। So we can write answer. Now what we have here, we have a polynomial of 4 degree, तो फिर हमको this should be differentiated 5 times, to be differentiated differentiated 5 times successively, and what we are going to write in answer is that क्या था, ये u हो गया, तो पहले तो u लिखना है हम लोग को, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो u इंटू वी का इंटीग्रेशन वो हो जाएगा e टू दी पावर 2x/2 माइनस u का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इंटू अभी जो मेरा v1 आया है ये है मेरा, देखो ये बेसिकली क्या लिख लिया हम, ये लिख लिया हम लोग u और ये लिख लिया हम लोग v1। अब v1 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा जो आ जाएगा e पावर 2x/2 स्क्वायर 4, सो प्लस, सो ऐसे हमको e पावर 2x को 5 बार डिफरेंशिएट करना होगा। इतना बड़ा हम ले लिए हैं, एग्जाम में इतना बड़ा नहीं देगा तुमको। सो दिस इज आवर फर्स्ट इंटीग्रेशन, here we have second, then you can go for थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ। थर्ड जब करोगे तो प्लस साइन आएगा, वहां पे क्या लिखाना चाहिए, वहां पे तुम्हारा फिर से एक बार इसको डिफरेंशिएट करोगे, क्योंकि ये तुम्हारा हो गया क्या, ये u डैश हो गया और ये क्या हो गया, ये v2 हो गया। अब u डबल डैश करोगे तो वो हो जाएगा 6x माइनस 8 इंटू, एक बार और इंटीग्रेट करोगे तो e पावर 2x बाई फिर से 2, तो 8 हो जाएगा, तो 3 बार इंटीग्रेट हो गया, माइनस इधर क्या हो जाएगा 6x माइनस 8,
6x माइनस 8 का मतलब क्या हो जाएगा? 6x माइनस 8 का ये तुम्हारा u डैश हो गया ना, u डबल डैश हो गया ये, और ये तुम्हारा v3 हो गया। नाउ 6x माइनस 8 को जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? e टू दी पावर 2x बाई 16। तो ये तुम्हारा फाइनली क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा u ट्रिपल डैश है, और ये हो गया तुम्हारा v4। और अब प्लस करोगे और डिफरेंशिएट करोगे तो वो 0 आ जाएगा। तो मैक्सिमम हम बोले ही थे नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड 5 टाइम्स, उससे ज्यादा डिफरेंशिएट, सॉरी वहाँ डिग्री 3 था ना, इसलिए 4 बार करना पड़ रहा। आई डिडंट सी डिग्री 4 कैसे, तुम लोग हैंड भी रेज नहीं किए, तो यहाँ पर डिग्री 3 है। सो नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड, और वहाँ इंटीग्रेटेड लिखना था। मेरे दिमाग में चल रहा है फर्स्ट फंक्शन को क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होता है। नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड 4 टाइम्स। तो पहला बार यहाँ पर कर दिए इंटीग्रेट, दूसरा बार यहाँ पर कर दिए, तीसरा बार यहाँ पर कर दिए, और चौथा बार यहाँ पर कर दिए। तो प्लस सी लिख सकते हो, बाकी तुम अपना e पावर 2x को कॉमन ले लो, और तुम देख सकते हो कि डिग्री 3 आ रहा है साथ में। सो इक्वल टू e पावर 2x अगर हम कॉमन ले लें तो ये तुम्हारा हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 2 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x बाई 2 माइनस 1। इधर से आ जाएगा तुम्हारा माइनस 3 बाई 4 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 बाई 4। इधर से आ जाएगा प्लस 3x बाई 4 माइनस 1। इधर से आ जाएगा माइनस 3 बाई 8 plus c. Now you simplify, you get e power 2x into, तुम्हारा 3 डिग्री आ ही रहा है, x क्यूब बाई 2, एक्स स्क्वायर तुम्हारा -2 है और -3 बाई 4 है, तो तुम्हारा हो जाएगा -8 -11 बाई 4। कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है मेरी तरफ से, उसके लिए आई एम सॉरी। 3x बाई 2 और 3x बाई 4 को जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो 3x बाई 2 और 2x को जोड़ लेते हैं हम लोग, तो 7x बाई 2 हो जाएगा, और एलसीएम में फिर 4 आएगा तो 14, तो 17x बाई 4। और कांस्टेंट टर्म तुम्हारा इधर -1 है और इधर -1 है, -2 हो गया, और -3 बाई 8 है, सो -19 बाई 8 प्लस सी। तो ऐसा ही कुछ आंसर होगा, कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो देख लेना। सो इफ दिस इज मेथड इज आल्सो क्लियर, जस्ट रेज हैंड। दिस इज मेथड ऑफ मल्टीपल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तुम ये भी जरूरत पड़े तो तुम लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं लगाना है, जहां जैसा जरूरत हो वैसा लगाना है। जैसे कि हम तुमको अभी एक क्वेश्चन दे रहे हैं, suppose we have, you need not solve it, just see the question and send me in the text box, you can do it or not. Suppose we have, or better you just solve it only, no problem. तुम क्या करो, तुम हमको पहला वाला क्वेश्चन का आंसर दे दो, पहला वाला क्वेश्चन का, पहला मतलब अभी जो दे रहे हैं, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 होल इंटू कॉस 2x dx। तो यहाँ पर तुम एक चीज समझ रहे हो, ये मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इस तरह का क्वेश्चन में तुमको काफी हेल्प मिलेगा, जब हम लोग इसको जनरली कैसे करते थे। अरे हटाओ ना उसको वहां से। तो व्हाट वी जनरली डू, वी यूज मेथड ऑफ इनडेफिनिट कोफिशिएंट्स। उसमें हम लोग को सेम डिग्री का पॉलिनोमियल इनटू कॉस प्लस सेम डिग्री का पॉलिनोमियल इनटू साइन दोनों लेना पड़ता था, फिर डिफरेंशिएट करना पड़ता था, फिर इक्वेशंस आ जाता था, 8-8 कोफिशिएंट्स निकालना पड़ता था। यहाँ तुमको जैसे करना है करो, तुमको 3 बार इंटीग्रेट करना है तुम 3 बार बाय पार्ट्स लगाओ, तुमको वो कोफिशिएंट्स निकालना है वो करो, या फिर मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स निकालना है, जैसे निकालना निकालो, जस्ट गिव मी द आंसर्स। नाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। This will be done using multiplication integration by parts. So this can be written as, हमारे पास ये जो है तुम्हारा, this function is my polynomial u, and here I have another function v which can be successively integrated 4 times, क्योंकि इधर डिग्री 3 है तो 4 बार इंटीग्रेट करने तक हम लोग को खेल खेलना है, मतलब 4 बार इंटीग्रेशन होगा। तो दिस इज इक्वल टू u, हैव पेशेंस, एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो कॉस का तो तुम्हारा साइन हो जाता है, साइन 2x बाई
2। अब माइनस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और इसको फिर से sin 2x/2 को जब इंटीग्रेट करोगे तो इस बार माइनस cos 2x, अब बाई 2 मतलब बाई 4 आ जाएगा, प्लस 6x माइनस 4। एक बार और इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस ही रह जाएगा, और sin 2x बाई 8, और फिर माइनस, सावी का मैसेज आया सर मिस्टेक मिल गई, सो नाउ डिफरेंशिएट 6 इनटू, और एक बार और इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस cos 2x बाई 16 हो जाएगा। सो यू कैन राइट sin 2x को एक साथ कर लेते हैं, और x³/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3/2x माइनस हाफ, और sin 2x तुम्हारा यहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है ये, माइनस 3/8 मतलब कि 3/4x, माइनस माइनस प्लस हाफ, और प्लस cos 2x के साथ मेरा आ रहा है, इधर से तुम्हारा आ रहा है माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा सब कुछ, तो 3/4x स्क्वायर माइनस x प्लस 3/4, और इधर आ जाएगा माइनस 3/8। So what we are getting is this only. So this is x³/2 माइनस x स्क्वायर, इधर तो हाफ और हाफ कट जा रहा है, और 3x/2 में 3x/4 चला जाएगा तो 3x/4 ही बचेगा। So this whole into sin 2x plus 3x square by 4 minus x plus 3/8 cos 2x। ये किसी का आंसर है यार तो हैंड रेस करो, ये आंसर शायद सही है। कौस्तुभ रेज द हैंड, करेक्ट कौस्तुभ, बहुत सही। आई विल चेक द आंसर। x³/2 minus x square plus 3x/4, yes, 3x square by 4 minus x plus 3/8। Please rate the method, कैसा मेथड लगा तुमको ये? in 3 lines we got the answer in 3 lines, yes we got it in 3 lines, you can just check, झूठ नहीं बोल रहे हम भाई तुम लोग से। you got the answer in, this is our first line, this is the formula of integration, multiplication integration by parts। और एक बात बता दें, ये सेकंड लाइन जो हम लिखे हैं वो तुम चाहते तो नहीं भी लिखते हो, डायरेक्टली थर्ड लाइन पे आंसर ला सकते थे। ओहो, हम लोग का थर्ड लाइन तो आंसर ही है। सो क्वेश्चन हैज बीन डन इन 2 लाइंस ओनली, सो यू कैन से दिस वन एज 2 लाइन मेथड। So this is 2 lines method, you can do such problems in just 2 lines। और जरूरी नहीं है कि तुमको ऐसा क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ तुमको चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की तरह, कुछ भी हो, इस cos 2x के जगह पर अगर मान लो √2x + 1 होता तो भी बना देते। √2x + 1 को हम कितना बार भी इंटीग्रेट कर देंगे, एक बार करेंगे तो पावर में 3/2 आएगा, फिर करेंगे 5/2 आएगा, फिर करेंगे 7/2 आएगा। हैंड रेस करो, समझ रहे हो ना? वहाँ कुछ भी हो, कितना बार भी हो, लगा सकते हो तुम यार बेहिचक होकर के। सो दिस वाज अमेजिंग, and the last application of by part sort method was left with us was integration using complex number, जो ऑलरेडी हम लोग एक एग्जांपल में तुम लोग को सॉल्यूशन हम भेजे थे, उसमें हम तुम लोग को दिखाए भी थे। सो shall we end it here, or we should take 1 or 2 example of integration by complex number? just send me a text, जो मेजोरिटी का भी होगा वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो